Okay, friends. So, welcome to the class today. And today we are going to discuss about cognitive biases. Cognitive biases, what are they, and what are their impact on our critical thinking? So, this is something which we are going to learn today. So, let us first start the session with the um, uh, 1 minute. Okay. So, first of all, just let us refresh the concept we discussed earlier about what is critical thinking. Now, as we have already discussed, the critical thinking is the systematic evaluation and analysis of information to form a judgment or decision. That means whenever we are making a decision, what we have to look is that, what is the pros and cons of any information, how genuine the information is. That means instead of believing, we must evaluate the pros and cons, critically analyze that information, and then only we take a decision or form a judgment. That is what is something called critical thinking. We have earlier learned, as to what are the different challenges of critical thinking. We learned that we all have personal biases, and that bias affect our decision making. One second. Biases are very important part that we all have personal beliefs and assumptions, and that affect our personal critical thinking. Then we have religions and mythologies which affect our critical thinking. We have also learned that people are very much superstitious. They follow a different superstition which do not have, much basis, and so that also is the reason, a big challenge, because we are following many superstitions. We have many beliefs which are not examined. That means the beliefs are wrong, but we believe that those things are truth. So that is also one of the challenges. Then we have our emotions. We have lack of information and lack of knowledge. Then we also discussed that there are certain tools of critical thinking. So unless we develop those tools, we can't do the critical thinking. जीतू भाई, would you like to have the lecture on Hindi or English? आप हिंदी में करना चाहेंगे, इंग्लिश में करना चाहेंगे? तब तक आप बताएंगे, तब तक हम इसको आगे बढ़ते हैं. So, if we want to be a critical thinker, then we must have, acquire certain knowledge, and that is that we must have learn about arguments and logic. We must learn about scientific methods. We must learn about probability and statistics. We learn about truth and belief, logical fallacies, cognitive biases, emotional biases. So these are the tools which we have to master. Unless we master these tools, we will not be able to develop our critical thinking. And friends, today we are going to discuss about cognitive biases, which is a very important tool, a very important, a piece of knowledge. And there are a lot of books on this cognitive biases as to how our intellectual thinking is actually affected, how we take decisions which are actually wrong, or how we very quickly conclude something which is wrong. So this is what we are going to learn, and this is the topic for today. One second. So, are you ready for the class today? So now we are going to discuss about, I will ask you certain questions, and please participate, and please tell me what you think about the answers are. Okay? Because I want the class to be participative. So please reply to that. तो आप लोग जो सवाल पूछते हैं उसको आप बताइएगा, इसके आंसर्स बताइएगा, ठीक है?
पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक बैट और बॉल, द टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल इज $1.1 in total. Bat cost of the bat is $1 more than the ball. What is the cost of the ball? Yes, please tell me. You understood the question? बैट और बॉल की जो टोटल कीमत है वो $1.1 है। बैट की कीमत जो है वो $1 है। तो बॉल की कीमत कितनी होगी बताइए? यस जीतू, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द बॉल? यस, कैन यू टेल मी? 0.1। ओके, और बताइए। अब देखिए, ये आंसर, ज्यादातर लोग ये आंसर देते हैं, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अगर बॉल की कीमत देखिए, अगर 0.10 है और बैट की कीमत इससे $1 ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी कीमत 1.11 होगी। तो इस तरीके से जो टोटल कितना हो गया, 110 1.20 हो गया। और यहाँ पे टोटल आपकी कीमत दी हुई है कितनी, 1.10। तो आपने देखा कि आपका आंसर रॉन्ग है। आपका सही आंसर होना चाहिए आपकी कीमत होनी चाहिए 0.5। क्योंकि अगर ये 0.5 होता है और तो बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 1.5, 1.05, 0.5 होगा, सॉरी 0.5, 1.05, और टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी। तो देखा आपने गलती किया कि नहीं किया इसमें? जीतू, यू मेक अ मिस्टेक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी सोच समझ के बिल्कुल जवाब दीजिएगा, फास्ट, लेकिन जवाब देना है आपको फास्ट। 5 मशीन्स 5 मिनट में 5 कारें बनाती हैं, तो 10 100 मशीन्स 100 कारों बनाने में कितना मिनट लगेगा? 100 मशीन्स को 100 कार बनाने में कितना मिनट लगेगा बताइए? फटाफट बताना है आपको, फटाफट बताना है। यस, 5 मशीन्स 5 मिनट में 5 कारें बनाती हैं, तो 100 मशीन्स को 100 कार बनाने में कितना मिनट लगेगा? यस, व्हाट इज योर आंसर? जल्दी बताइए। गलत होगा कोई बात नहीं, हम आपको तुरंत इसका आंसर बताएंगे, लेकिन ये जो मिस्टेक है हम बहुत करते हैं, इसलिए जो है इसको जानना जरूरी है। यस 20 देखिए, ये जो है ज्यादातर लोग इसमें जो आंसर देते हैं 100 देते हैं। खैर, आपने 20 दिया, ये भी गलत ही आंसर है। देखिए, 5 मशीन्स 5 मिनट में 5 कारें बनाती है, तो 100 कारें बनाने में कितना टाइम लगेगा? मशीन्स भी आपकी 100 है और कारें भी आप 100 बना रहे हैं, तो इसमें भी आपको 5 मिनट ही लगेगा। आप समझ गए नहीं समझ गए? जीतू, आर यू हैव गॉट द आंसर? क्योंकि 100 मशीन्स हैं, तो 100 कारें बनाने में भी उनको 5 मिनट ही नहीं, आपका बिल्कुल सही है, आपने 20 सही दिया। लेकिन इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं 100, क्योंकि यहाँ पे 100 का फिगर आ गया, तो उनको लगता है कि ये 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपका आंसर सही है, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें 100 का आंसर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, तो ये भी 100 देते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, एक लेक है जिसमें एक लिली पैड्स हैं, और हर दिन पैच का साइज डबल हो जाता है, ठीक है? तो 48 डेज में पैच पूरा कवर हो जाता है, तो कितना दिन लगेगा पैच को आधा कवर होने में? आप समझ गए? इसका जवाब दीजिए। यस, क्या आंसर होगा आपका? 48 डेज में पैच पूरा कवर हो जाता है, तो आधा कवर होने में कितना टाइम लगेगा? यस, व्हाट इज द आंसर?
यस, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, लेकिन एक्चुअली आप बिना अपने सोच समझ के जवाब दिया, इसलिए बिल्कुल सही जवाब था आपका। एक्चुअली इसमें काफी लोग अगर पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग इसका जवाब 24 देते हैं, बट आपने देखिए सोच समझ के जवाब दिया तो बिल्कुल सही जवाब है। 47 ही इसका सही आंसर है, क्योंकि 48 में आपका ये डबल हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है, एक सेकंड मैं इसमें आता हूं, आपको स्क्रीन पे आता हूँ, फुल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं है? हिंदी में करते हैं सेशन को, हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? एनीबडी? यस जीतू, वीना, हिंदी इज ओके? तो अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव जो बायसेस। आपने देखा यहाँ पे कि पहले क्वेश्चंस में गलती किया, बाकी आप लोगों ने जब सोच समझ के जवाब दिया तो आपने सही जवाब दिया। तो ये जो कॉग्निटिव बायसेस होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव बायसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। इसको इट वाज इंट्रोड्यूस बाय एमोस, एक सेकंड, वन सेकंड। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एमोस ट्रेवेस्की और नोबेल लॉरेट हैं डेनियल कोलमैन, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1972, और इनकी बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। आप लोगों में से थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ी है किसी ने? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, एनीबॉडी? हैव यू रेड दिस बुक? सो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, यू नो, इस बुक में जो उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है वो ये कि जो हमारा जो माइंड है, वी कैन डिवाइड द प्रोसेस ऑफ द माइंड इनटू टू डिस्टिंक्ट सिस्टम्स। वन इज सिस्टम वन एंड सिस्टम टू। सिस्टम वन इज, इट इज बेसिकली आवर इंट्यूटिव माइंड। This mind is fast, automatic, and we use this more frequently. It is something which is emotional. It follows a stereotype. That means we form opinion based on, you know, general perception, and it is unconscious. Unconscious मतलब बिना सोचे समझे हम डिसीजन करते हैं। लेकिन तो जो चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं बहुत फास्ट डिसीजन करते हैं। आप किसी आदमी को देखते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ आप जान लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि कोई सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन दिया गया, 2+2 आपको बोला गया, तो फट से आप 4 उसको बता देते हैं। या फिर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि फ्रेज अगर आपको देना है वॉर एंड, तो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में पहले से इसका आंसर है तो आप फट से इसमें पीस लिखते हैं। या मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप फटाक से दिल्ली बोलते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो। और कोई भी अगर चीजें हम लर्न करते हैं, जैसे अगर हम मैथ्स लर्न कर रहे हैं, फिजिक्स लर्न कर रहे हैं, तो शुरू शुरू में हमें सोच समझ के आंसर देने होते हैं, कोई मेथड होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे वो प्रोसेस क्या होती है, ऑटोमेट हो जाती है। और फिर वो चीजें हम ऑटोमेटिकली, हमें दिमाग में एक आइडिया आता है कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है, एंड वी आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वेरी क्विकली। अनलाइक दैट वी आल्सो हैव अ सिस्टम टू। सिस्टम टू जो होता है, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ माइंड विच वी कैन से लॉजिकल माइंड। ये जो लॉजिकल माइंड होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, और इसमें हमें एफर्ट करना पड़ता है, मतलब सोच समझ के इसमें जवाब देना होता है। इसको हम रोजमर्रा में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको ये जो सिस्टम टू माइंड है, जब इसको हम इसके बारे में सोचते हैं तभी स्टार्ट करते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसमें हम लॉजिकल होता है, एनालिटिकल होता है, कैलकुलेटिंग होता है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, और ये कॉन्शियस होता है, मतलब हमें पता होता है कि हम इस माइंड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो सिस्टम वन माइंड है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। सिस्टम टू माइंड जो होता है, जब हम सोच समझ के, मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई जिसका आपके पास में कोई आंसर नहीं है,
तो ऐसे सिचुएशन में आप लॉजिकली फिर उसको प्रॉज एंड कॉन्स को स्टडी करके करते हैं, और वो बेसिकली सिस्टम टू माइंड होता है। इसमें क्या होता है कि वी लर्न सम नॉलेज, जो हमारी लर्नेड नॉलेज होती है, मतलब जो इंस्टिंक्ट नहीं होती है, और जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम डिसीजंस को सारे फैक्ट्स के बेसिस पे कंसीडर करते हैं। आफ्टर एनालिसिस हम लोग कंसीडर करते हैं बहुत सारे जो डिसीजंस हैं, हम सारे प्रॉज एंड कॉन्स को जब करके फिर डिसाइड करते हैं। अब देखिए, ये जैसे अगर आपको मैंने बोला कैलकुलेट कर रहे हो 34/47, नाउ दिस यू कैनॉट कैलकुलेट ऑटोमेटिकली। इसके लिए फिर आपको पेन पेपर लेना पड़ता है, या आप मेंटली भी कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आपको टाइम लगता है। या आपसे पूछा गया कि कौन सा एयर कंडीशनर अगर आपको अपने घर के लिए परचेज करना है, अब ये भी आप बहुत ही सोच समझ के फिर यू डिसाइड, बिकॉज व्हाट हैपेंस दैट आपको यू हैव टू स्टडी द प्रॉज एंड कॉन्स, लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट, यू हैव टू फाइंड आउट द बेनिफिट, यू हैव टू फाइंड आउट इसमें कौन सा कॉयल लगा हुआ है, ये सारे फैक्टर्स, ब्रांड कौन सा है। तो ये चीजें आप ऑटोमेटिक डिसाइड नहीं करते, ये आप डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस। या अगर मान लीजिए कि आपको कोई पैराग्राफ है, उसके अंदर अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स द लेटर एस हैज कम, नाउ दैट आल्सो यू कैन नॉट डिसाइड ऑन द ऑटोमेटिक बेसिस। ओके, तो ये जो माइंड होता है ये स्लो एंड लॉजिकल माइंड होता है, और ये जो होता है ऑटोमेटिक माइंड होता है, एंड बोथ द माइंड्स वर्क टुगेदर। कोई भी चीज देखिए जब हम लर्न करते हैं तो इट स्टार्ट विद सिस्टम टू, और उसके बाद में धीरे धीरे जब हम उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं तो सिस्टम वन में आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई म्यूजिक सीखते हैं, तो म्यूजिक में मान लीजिए कोई सारेगामा या कोई गाना आपने सीखा, तो पहले आपको वो नोट्स पता होते हैं, और वो नोट्स को आप बहुत ही याद करके उसको प्रैक्टिस करते हैं। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, यू डेवलप अ सेंस, एंड देयर आफ्टर यू कैन प्ले द म्यूजिक विदाउट एनी विदाउट एनी थिंकिंग, यू कैन जस्ट प्ले इट ऑटोमेटिकली। तो यहां से देखिए, ये जो सिस्टम वन और सिस्टम टू जो है, ये बहुत ही बड़ी मेजर डिस्कवरी मानी जाती है, और यहीं से बेसिकली कॉग्निटिव बायसेस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। Cognitive biases are the result of the systematic thought process which is caused by the human brain to simplify information processing through a filter of personal experiences and preferences। मतलब आपके पास जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, आप क्विकली आपका माइंड डिवाइड करता है कि इस पे दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना, हमें सोचना है कि नहीं सोचना है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेसिकली इट डिसाइड्स वेदर इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। तो हमारा एक जो इंट्यूटिव माइंड होता है वो तुरंत आपको एक सोल्यूशन बताता है। जैसे कि आपने फर्स्ट केस में देखा कि आपको सोल्यूशन बताया कि $10 होना चाहिए, $0.1 होना चाहिए, वैसे ही आपका माइंड हमेशा हर चीज के लिए क्विक सोल्यूशन बताता है। और ये जो क्विक सोल्यूशन होता है अक्सर सही होता है अगर नॉर्मल चीजें होती हैं, बट अगर कोई नई चैलेंज आ जाए तो उसमें ये प्रॉब्लम, ये गलत सोल्यूशन को देता है। And this filter process basically enables the brain to prioritize and process large amount of information, because when you get large amount of information you can't process everything, you can't apply your mind for everything. So certain things which you already know, or which you think are not of much consequence or not much of a value, in that case you know what happens, that you can quickly decide, intuitively decide, and then reserve your logical mind or the system to only for doing complicated issues. This cognitive biases basically help people find different mental shortcut to deal with the issues of daily life, but sometimes they also cause irrational interpretation and judgment. So this is what is cognitive biases, because देखिए जो हमारा जो माइंड है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करता है, या जो भी सोल्यूशन होता है जो उसके दिमाग में आता है फट से उसको ढूंढने की कोशिश करता है, और उसी में क्या होता है कि हम गलती कर जाते हैं। जो हमारा इंट्यूटिव रिस्पॉन्स है, सिस्टम वन रिस्पॉन्स है, तो हमें कहाँ पे सिस्टम वन को यूज करना है, कहाँ पे सिस्टम टू को यूज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। सो एनी वन, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई आपके डाउट्स हैं? एनी डाउट्स यू हैव? यस, एनी वन? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। इज इट क्लियर सो फार, सिस्टम वन, सिस्टम टू? Okay, so now let us proceed. I think there are no doubts, so let's proceed for the different type of cognitive biases. Now, of course, the list of the cognitive biases is very large, and we are going to discuss some of the most important biases: attribution biases, false consensus or confirmation biases, estimation biases, availability biases, hindsight biases, anchoring biases, expertise biases, and Dunning-Kruger effect. ठीक है? तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, any questions? Okay, now let us start with the attribution biases.
एट्रीब्यूशन बायसेस क्या होता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का बायस होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि we overestimate the role of the personality or character in shaping our behavior while underestimating the impact of the situational factor। देखिए क्या होता है इसमें कि हम जो होता है जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि कोई काम अगर कोई कर रहा है, तो अगर मान लीजिए वो सक्सीड नहीं किया, तो हमें लगता है कि उसकी पर्सनल गलती की वजह से वो सक्सीड नहीं किया। हम ये नहीं इसको वी डोंट एस्टिमेट दैट व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। So we just, if somebody succeed, we say, oh, he is very brilliant. But somebody who fails, we say, he has not tried enough. But actually, क्या होता है? Many times the situations are very important, and situations decide anything. Another very important thing is that जब कोई सक्सेस मिलती है, जैसे मान लीजिए जब हमें सक्सेस मिलती है, सपोज हमने एक कंपटीशन दिया और कंपटीशन में हम सक्सीड हो गए या किसी भी चीज में सक्सीड हुआ, देन वी डिसाइड दैट ऑन द इंटरनल फैक्टर। हम ये कहते हैं भाई हम बहुत काबिल हैं, हमने बहुत वी आर टैलेंटेड, वी आर हार्ड वर्किंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट माय स्ट्रेटजी वाज गुड एंड दैट इज व्हाई वी सक्सीडेड। तो वहां पे हम क्रेडिट सारा उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं, मान लीजिए अगर सपोज करिए आप एग्जाम देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि वी आर नॉट कॉम्पिटेंट। फिर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। हम कहते हैं लक हमारी अच्छी नहीं थी, या सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, या बाकी लोग कोचिंग करते हैं हम नहीं करते हैं, या तो इस या वो लकी थे। मतलब हम क्या होता है कि जब सक्सेस होती है तो उसका क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन जब हम फेल हो जाते हैं तो उसका ब्लेम नहीं लेते, हम उसको दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। दिस इज व्हाट इज एट्रीब्यूशन बायस। लेकिन सबसे मजे की बात ये होती है कि जो दूसरा अगर कोई सक्सीड करता है, फेल करता है, तो हमारा रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर दूसरा आदमी सक्सेस पाता है तो हम कहते हैं अरे ही इज वेरी लकी, और अगर वो फेल होता है तो कहते हैं देखो उसने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया। समझ गए आप? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बायस है कि हम अपने लिए अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम कहते हैं हम डिजर्व करते हैं, और फेल होते हैं तो उसके लिए बाकी चीजें रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जब दूसरा सक्सीड करता है तो उसको हम लक बोलते हैं, उसकी लक अच्छी है, और फेल होता है तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो ये एक एट्रीब्यूशन बायसेस होता है। इसी में एक्टर ऑब्जर्वर बायस होता है, एट्रीब्यूटिंग वंस ओन बिहेवियर और सिचुएशनल फैक्टर व्हाइल एट्रीब्यूटिंग अदर्स बिहेवियर टू देयर कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। तो जब हम हमारा जो चीजें होती हैं उसको हम क्या करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि हमने खुद क्रेडिट लेते हैं और बाकी सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। दूसरों के लिए बिल्कुल अपोजिट हम करते हैं। अगर कोई और फेल नहीं हुआ तो हम कहते हैं भाई ये तो उसकी गलती है क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। इसी में क्या होता है, विक्टिम शेमिंग का इशू आता है। अब जैसे आप देखेंगे कि अगर बाकी लोग पुअर हैं, गरीब हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो मेहनती नहीं है, लेजी हैं, इग्नोरेंट हैं, या दे डोंट हैव मोटिवेशन, इस वजह से गरीब हैं। चलिए मनोज, वेरी गुड, वेलकम वेलकम। तो ये जो विक्टिम शेमिंग की टेंडेंसी होती है कि अगर मान लीजिए कि कोई गरीब है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो उसके लिए बाकी एक्सटर्नल सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग ये कहते हैं कि भाई बिकॉज ही इज लेजी एंड ही इज इग्नोरेंट एंड ही इज नॉट मोटिवेटेड, इसलिए वो गरीब है। और अगर आप गरीब हैं तो फिर आप ये फैक्टर नहीं लगाते हैं, फिर आप कहते हैं बैड गवर्नमेंट है, करप्शन है, कॉस्टली एजुकेशन है, कोचिंग सेंटर है, नेपोटिज्म है, इसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं। है कि नहीं, बताइए, डू यू एग्री विथ मी? तो हमेशा हम क्या करते हैं कि जब हमारे साथ प्रॉब्लम आती है तो हम एक्सटर्नल सिचुएशंस को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, लेकिन दूसरों के साथ प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको हम एट्रीब्यूशन बायस कहते हैं। ठीक है। अब ये एक दूसरे टाइप का बायस होता है नेक्स्ट, फॉल्स कॉन्सेंसस और कंफर्मेशन बायस। ये क्या होता है कि आपके जो भी व्यूज होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे व्यू से ज्यादातर लोग एग्री करते हैं। वी ओवर एस्टिमेट ऑफ हाउ मच पीपल एग्री विथ अस एंड अप्रूव अवर बिहेवियर। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए सपोज करिए कि आप रिजर्वेशन के फेवर में हैं, आप सपोज करिए जो हमारे देश में रिजर्वेशन है उसके फेवर में। सो इफ यू फेवर रिजर्वेशन, आपको लगता है वही चीज सही है और ज्यादातर लोग इस बात को एग्री करते हैं। और अगर आप उसके अगेंस्ट में रहते हैं तो आपको लगता है कि मेरी बात सही है, ज्यादातर लोग उसके अगेंस्ट में है। तो जो आपके व्यूज होते हैं, उसी तरीके से मान लीजिए सपोज करिए आप मोदी जी को बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानते हैं,
तो आपको लगता है सारे लोग मानते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको बहुत खराब प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादातर लोग जो है उसको खराब मानते हैं। तो आपके जो पर्सनल व्यूज हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो बाकी सारे लोग उसको एग्री करते हैं। इसको कई बार फॉल्स कॉन्सेंसस इफेक्ट कहते हैं, because this describes the tendency of people to see one's own behavior, choices, and judgment as relatively common and appropriate to existing circumstances, while viewing alternative responses as uncommon, deviant, and inappropriate. तो आपको जो भी चीजें आपको आपके हिसाब से सही है, अगर मान लीजिए आप धर्म पे विश्वास करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, सभी लोगों को धर्म पे विश्वास करना चाहिए, ज्यादातर सब लोग धर्म पे विश्वास करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, तो आपको लगता है धर्म पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है कि अक्सर जो चीज हम सुनना चाहते हैं, हम वही चीजें सुनते हैं। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अब न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल है जो आपके व्यू को सपोर्ट करता है, तब तो आप उस आर्टिकल को पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके व्यू के अगेंस्ट में है, तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चीजें हम सोचते हैं, हमें लगता है वही चीजें बाकी लोग भी सोचते हैं। सो वी टेंड टू लिसन और गैदर मोर इन्फॉर्मेशन विच कंफर्म अवर बिलीव्स एंड दोस, और जो हमसे हमारे व्यूज को चैलेंज करती हैं, जो हमारे लिए अनप्लेजेंट होती हैं, जिसको हम सुनना नहीं चाहते, उसको हम पढ़ते नहीं, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, वो भी फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे व्यू को सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि जब हम ऐसे अपोजिट व्यू को नहीं सुनते हैं, तो हमारा व्यू ऐसा, हमें ऐसा लगने लगता है कि जो हम सोचते हैं वही सही है। ठीक है, जैसे रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। यू गॉट द पॉइंट और एनी इशू? आप समझ गए इसमें? एनी डाउट? फॉल्स कंसेंसस बायस में कोई डाउट तो नहीं है? देखिए, लक जो है, आपने कहा कि लक है, आप चाहे 100% एफर्ट दें, रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग। देखिए, मैंने आपको बताया, यही बात बताई अभी आपको, जो एट्रीब्यूशन बायस में मैंने आपको यही बात बताई कि अगर आप किसी सक्सेसफुल पर्सन से पूछेंगे, तो वो कभी नहीं कहेगा कि वो लक की वजह से सक्सीड किया। वो हमेशा ये कहेगा मैंने हार्ड वर्क किया, मैं डिजर्व करता था, मेरे अंदर मेरिट थी, इसलिए मैं सक्सीड किया। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं पाते हैं, तो क्या होगा कि आप हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर को, जैसे लक है या आपका सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन फेयर नहीं है, ऐसे चीजों को आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि लक जो है, ये एक ऐसी चीज है कि ये हमने जैसा आपको बताया कि वी ऑलवेज टेक दिस शेल्टर बिकॉज यू आर नॉट सक्सीडिंग। आप, और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए आपकी बात हम सही भी मान लें कि लक है, तो आप लक के बारे में कुछ कर नहीं सकते। फिर क्या होता है, जैसे आप लक पे विश्वास करते हैं, तो फिर लोग क्या करने लगते हैं, आप सुपरस्टिशंस पे जाना शुरू कर देते हैं। और सुपरस्टिशंस में फिर वो कहेंगे भाई ये कर लो, वो कर लो, ये पहन लो, वो पहन लो, इससे आपका लक इंप्रूव हो जाएगा। सारा का सारा देखेंगे, सुपरस्टिशन का बिजनेस है, वो बेसिकली इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप लक करें। इवन प्रेयर लोग करते हैं अपने लक को इंप्रूव करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि आप पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दें कि लक की वजह से आप सक्सीड नहीं कर रहे हैं। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए किसी भी चीज में, व्हेन यू राइटिंग एनी एग्जामिनेशन और ट्राइंग एनीथिंग, और उस हिसाब से ट्राई करना चाहिए, और हार्ड वर्क की जरूरत है। नहीं, डोंट एक्सेप्ट द फेल्योर, यू मस्ट, देखिए, यू मस्ट ऑलवेज एग्जामिन दैट वेयर यू आर लैकिंग। देखिए, मैं भी लाइफ में बहुत फेल हुआ हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब मैं फेल होता हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे अंदर क्या कमी है, या मेरी स्ट्रेटजी में क्या कमी है, जिसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं पा रहा हूं। और अगर मैं उन वीकनेसेस पे काम करूंगा, तो मैं सक्सेस को पाऊंगा, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लक को ब्लेम करेंगे या लक के बारे में सोचेंगे, तो फिर आप बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करेंगे। जैसे आपने लिखा है कि कैन आई एक्सेप्ट फेल्योर? नो। सो प्लीज डोंट एक्सेप्ट फेल्योर, एंड डोंट थिंक दैट गॉड इज अगेंस्ट यू, और देयर इज अ डेस्टिनी इज नॉट देयर विथ यू। आपको खुद असेसमेंट करना है, और यही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मैं आपसे बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर कोई सक्सेसफुल होता है, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं लक से सक्सेसफुल हुआ। वो हमेशा ये क्लेम करेगा कि मैंने मेहनत की, इसलिए सक्सेसफुल हुआ। तो आप बिल्कुल उसको इग्नोर, भूल जाइए कि लक का कोई फैक्टर है। आप हमेशा एनालिसिस करें, और कि हाँ, इसमें क्या कमियां रह गई, और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप उसको इम्प्रूव करेंगे, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। यस वीना, यू आर राइट, यू हैव टू एनालाइज
कि क्यों जो है हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली सोचिए, एक्सपेरिमेंट करिए, और उसके बाद में फिर आपको पता चलेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। हाँ, आप उसको पढ़िए और डेफिनेटली यू विल सक्सीड मनोज, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल सक्सीड। बट प्लीज डोंट ब्लेम लक। एक बहुत ही फेमस कोट है, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। एक बहुत ही फेमस कोट है अमेरिकन प्रेसिडेंट का शायद, द हार्डर आई वर्क लकियर आई गेट। तो जितना आप मेहनत करेंगे आपके चांसेस उतना ज्यादा सक्सेस के इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट, एस्टिमेशन बायस पे आते हैं। एस्टिमेशन बायस क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, यू नो, एनी ग्रुप ऑफ पीपल, हाफ द पीपल आर अबव एवरेज। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में अगर आप लॉजिकली सोचें तो 50% लोग जो होते हैं वो अबव एवरेज होते हैं, और 50% लोग जो होते हैं वो बेलो एवरेज होते हैं। है कि नहीं? लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोगों का सर्वे करें कि हाउ मेनी पीपल कंसीडर देमसेल्फ अबव एवरेज, तो मोस्ट ऑफ द पीपल कंसीडर देमसेल्फ अबव एवरेज। इसी तरह मोस्ट ऑफ द पीपल एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट देयर आईक्यू। अब जैसे एक बहुत ही फेमस स्टडी है जो 1977 में कंडक्ट की गई थी, उसमें एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछा गया, हाउ मेनी पीपल कंसीडर देमसेल्फ एज अबव एवरेज। उसमें यह देखा गया कि 94% ऑफ द प्रोफेसर्स रेटेड देमसेल्फ अबव एवरेज रिलेटिव टू देयर पीयर्स। 94%। आप समझ सकते हैं कि ओनली 50% पीपल कैन बी अबव एवरेज। है कि नहीं, बताइए। इसका मतलब कि जो 44% लोग थे who were below average, they also thought that they are above average। उसी तरह एक दूसरी स्टडी थी, उसमें पूछा गया एक सॉफ्टवेयर कंपनी से कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दे आर इन द टॉप 5%। और उसमें 32% लोगों ने ये कहा कि वो टॉप 5% में अपने को समझते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अपने को, जो हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा समझते हैं ज्यादातर लोग। तो इसीलिए देखिए, सिविल सर्विसेज हो गया या कोई कंपटीशन हो गया, तो उसमें भी क्या होता है कि सपोज करिए कि आपको टॉप 1% में आना है, क्योंकि टॉप 1% में नहीं बल्कि आपको टॉप 0.1% में आना है। सपोज 1 मिलियन लोग हैं और उसमें से 1000 में आना, तो टॉप 0.01%। तो कायदे से 0.1% लोगों को ये समझना चाहिए कि हाँ, वी कैन डिजर्व देयर। बट एक्चुअली क्या होता है, दिस नंबर इज मच हायर। इसमें हो सकता है 40 to 50% लोगों को ऐसा लगता हो कि वो टॉप 1% में डिजर्व करते हैं, 0.1% में। तो ये एस्टिमेशन बायस होता है। इसका मतलब ये है कि जहां पे हम एक्चुअली स्टैंड करते हैं, हम अपने को उससे ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। सो इन सम वे इट इज गुड ऑल्सो, बिकॉज साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। बट ऑन द अदर साइड व्हाट हैपेंस दैट यू ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ, और इसीलिए क्या होता है, सक्सेस आपको नहीं मिलती, फेल होते हैं आप। अब ये जो है मदर ऑफ द ऑल बायसेस है। ये जो अवेलेबिलिटी बायस है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायस। और आप कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल बायसेस, क्योंकि ये ज्यादातर जो हमारे बायसेस हैं वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड रहते हैं। व्हाट इज दिस अवेलेबिलिटी बायस? दिस इज द बायस कि हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है, वी टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन वॉट एवर इंफॉर्मेशन कम्स टू अवर माइंड। मान लीजिए कोई भी डिसाइड आपको करना है, तो जो भी बात आपके दिमाग में पहली बार आ जाती है, आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द एलोबोरेट एनालिसिस ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। ये जो डेनियल कॉलमैन थे, उनकी बुक है फास्ट थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, हु इज द फादर ऑफ द दिस कॉग्निटिव बायस आल्सो। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, WYSIATI। इसका मतलब व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कि जो आपको दिखता है, आपको लगता है बस उतनी इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर देते हैं। और जो गैप होता है उसको आप अपने एजम्पशंस के बेसिस पे वो आप एज्यूम कर लेते हैं, इंट्यूशन के बेसिस पे, एजम्पशंस के बेसिस पे एज्यूम कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ऑल द फैक्ट्स। व्हाट यू डू इज दैट व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड, यू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब देखिए, ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया दिस इज द मदर ऑफ ऑल बायसेस। जैसे मीडिया बायसेस, मीडिया बायसेस में देखिए आप, मीडिया जो होती है हमेशा निगेटिव स्टोरीज को ज्यादा दिखाती है। एंड मीडिया में एक बहुत ही फेमस सेइंग है
if dog bites man, it is not a news. If man bite dogs, it is a news. तो ये ये एक चीज है कि जो एक्सेप्शंस होते हैं मीडिया उन्हीं चीजों को दिखाती है. मीडिया विल नॉट शो यू समथिंग विच इज हैपनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ज्यादातर लोग देखिए कोई क्राइम नहीं करते पूरी लाइफ में. 99% लोग जो होते हैं दे आर ऑनेस्ट, दे आर ऑल्सो ऑनेस्ट, क्राइम नहीं करते, क्राइम फ्री नहीं. कितने लोग हैं जो मर्डर करते हैं, कितने लोग होते हैं जो रेप करते हैं, कितने लोग होते हैं जो चोरी करते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो ये काम करते हैं. अगर आप टोटल पॉपुलेशन में देखेंगे तो 1-2%, 3% लोग ऐसा करते हैं. बट मीडिया में न्यूज किसकी आती है? जो गलत काम करते हैं. समझ गए आप? तो इसीलिए जो है हम क्या होता है कि जो हम बिकॉज वी सी मोर ऑफ दैट, देयर फॉर आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड बिकम नेगेटिव. क्योंकि हम निगेटिव चीजों को ज्यादा देखते हैं तो हमारा परसेप्शन निगेटिव हो जाता है. उसी तरीके से इमोशनल इंपैक्ट, किस चीज का आपका इमोशंस जिसमें ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले 1 साल 1.5 साल हो गया होगा कि एक इस्लामिक कोई बंदा था, मुस्लिम था, जिसने किसी बंदे का गर्दन काट दिया था. उसने बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट उसने किसी का गर्दन काट दिया और उसका वीडियो बना करके डाल दिया. तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं आपके बहुत ज्यादा आपको स्ट्रांगली इंपैक्ट करती हैं. जबकि हकीकत में जो ज्यादातर जो मर्डर्स होते हैं उन सब में इसी तरीके की चीजें होती है. व्हेन यू नो समबडी स्लिट द स्लॉट ऑफ द आई मीन नेक ऑफ द पर्सन और लाइक दैट. लेकिन अगर वो चीज आपको दिमाग में उसका इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि आपको लगता है कि चीजें होती रहती हैं. आप देखिए वॉर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सोचिए कि अभी जो इसराइल का वॉर हो रहा है या यूक्रेन का वॉर हो रहा है, उसमें भी हजारों लोग मर रहे हैं लेकिन उसका आपके ऊपर उतना इमोशनल इंपैक्ट नहीं होता है. लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई आपका अपना मर जाए तो बहुत ज्यादा इमोशनल इंपैक्ट होता है. तो जितना इमोशनल इंपैक्ट होता है उतना ज्यादा हम उस चीजों को ध्यान रखते हैं. उसके बाद रिसेंसी बायस इससे होता है. जैसे मान लीजिए कि आज कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो आप देखेंगे कि उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है. आप कुछ दिनों तक लोग ट्रेन से सफर नहीं करते हैं. अगर आपके फैमिली में मान लीजिए किसी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, कार से जा रहा है उसकी डेथ हो गई, तो आप क्या करते हैं, कार में चलने में आपको डर लगता है. जबकि ऐसा नहीं है कि रोज आप देखेंगे तो 400 लोग जो होते हैं दे डेली डाई बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट. लेकिन आपको ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप उनको जानते नहीं है. लेकिन अगर वही चीज अगर आपके अपने लोगों के साथ होती है तो आपको उसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है. और कोई चीज जो तुरंत होती है उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है. वही अगर साल भर बाद 2 साल बाद देखेंगे तो उसका इंपैक्ट कम हो जाता है. उसी तरीके से प्रॉक्सिमिटी बायस, अगर आपका कोई अपना होता है, अपने रिलीजन का कोई बंदा है, अपने धर्म का कोई बंदा है, आपका अपना फैमिली मेंबर है, उसके साथ अगर कोई चीज होती है तो उसका इंपैक्ट आपके ऊपर ज्यादा होता है. ठीक है. तो ये जो बायस, अवेलेबिलिटी बायस, ये बायस क्या होता है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसके बेसिस पे चीजों को डिसाइड कर लेते हैं. तो इसमें इस वजह से हम गलत जजमेंट पे पहुंचते हैं. इफ यू वांट टू मेक अ प्रॉपर जजमेंट व्हाट यू हैव टू डू इज, क्या करना चाहिए हमें? यस, अगर हम इसमें प्रॉपर अवेलेबिलिटी बायस को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं? यस, प्लीज टेल मी. इससे बचने का देखिए यही तरीका है कि व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हम कलेक्ट करें. जैसे हम स्टैटिस्टिक्स लें, डेटा लें, और यहां पे अगर हम डिसाइड करेंगे तो हमारे जजमेंट्स सही होंगे. ठीक है. अब हम आते हैं हाइंडसाइट बायस पे. हाइंडसाइट बायस होता है दिस रिफ्लेक्ट द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू कन्विंस देमसेल्फ आफ्टर द इवेंट दैट दे एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड इट बिफोर इट हैपेंड. जब देखिए कोई चीज हो जाती है तो फिर हम कहते हैं देखो मैंने तो पहले ही कहा था.
हाँ, सिस्टम टू से सोचना चाहिए, यस। तो हमेशा देखिए ये ध्यान रखिए कि जब आपके पास में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उससे बाहर आप जाए, जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, उसको आप अगर इकट्ठा करेंगे तो आपके जो डिसीजंस होंगे ज्यादा एक्यूरेट होंगे। तो ये जब भी इंपॉर्टेंट इशू हो, जब इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल इशू हो तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू डिसीजन लेना है तो आप ये भी देखिए कि क्या चीजें इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर आप उसके बेसिस पे डिसाइड करिए, ठीक है। हाइंडसाइट बायस क्या होता है कि जब इवेंट हो जाती है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम पहले से ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, हमें तो पहले से ही लगता था। वी सेलेक्टिव रिमेंबर ओनली द इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स अवर आउटकम व्हाइल इग्नोरिंग द इंफॉर्मेशन दैट टर्न आउट टू बी रॉन्ग। हम देखिए हर मोमेंट हम चीजों को गेस करते रहते हैं। आज भी जैसे अगर मान लीजिए आप हैं तो आज आप गेस करते हैं कब से साल भर बाद इंडिया का क्या होगा, साल भर बाद इकोनॉमी का क्या होगा। अगर आपके जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, अगर कोई बच्चा मान लीजिए आपकी फैमिली में एग्जाम दे रहा है, यू विल ऑल्सो स्पेकुलेट किसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि आप जब वो सक्सेस पा जाता है, फेल हो जाता है, फिर आपको लगता है आपने तो पहले ही कहा था। अगर वो सक्सेस हो गया तो कहते हैं अरे देखो मैंने तो पहले ही कहा था, बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ी मेहनत करता है। फेल हो गया तब आप कहेंगे देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि ये फेल होगा क्योंकि ये मेहनत नहीं करता, ये उतना टैलेंटेड नहीं है। तो ये हम जब इवेंट हो जाती है तब हम प्रिडिक्ट करते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें तो पहले से मालूम था। उसी तरह जैसे टेररिस्ट अटैक होता है, तो देखिए रोज जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके पास में इंफॉर्मेशन आती रहती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन जब एक अटैक हो गया, आप हमेशा देखेंगे ये होता है, तो उसके बाद में मीडिया जो है न्यूज चलाता है कि देखिए ये इंफॉर्मेशन थी पहले से ही। जबकि उस तरीके की इंफॉर्मेशन रोज आती रहती है और उसके अंदर इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती। टेररिस्ट यहाँ पे होगा, इसके अंदर इस आदमी का होगा, कुछ जनरल टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन उसके बेसिस पे लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रॉपर एक्शन लेते तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते थे। तो इसको कहते हैं हाइंडसाइट बायस। इसका मतलब कि जब चीजें हो जाती हैं तो हमें लगता है कि हमें पहले से मालूम था, और इसके बेसिस पे हम अपने को ओवर एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसका एक तरीका ये होता है कि जब भी आपको इस तरीके का प्रोडिक्शन करें तो आप उसको नोट डाउन कर लें। आप डायरी में अगर एक डायरी लिखने की आदत डालें तो बहुत अच्छी आदत है। अब देखिए कोरा पे मैं आंसर लिखता रहता हूँ, एंड इन कोरा यू नो आई हैव मेड लॉट ऑफ प्रोडिक्शंस अर्लियर। बहुत सारी बातें मैंने लिखी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो सही नहीं हुई। और इसीलिए जैसे कोरा पे जब मैं आंसर देखता हूँ अपने, तो मैं कई बार देखता हूँ अरे अब से 5 साल पहले मैं ऐसे ही सोचता था, 10 साल पहले ऐसा सोचता था। बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसके बारे में मेरे व्यूज चेंज हो गए। लेकिन अगर वो मुझे रिकॉर्डेड ना हो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे तो लगेगा मैं तो पहले ही कहता था। तो ये हाइंडसाइट बायस होता है जिससे हम अपने को ओवर एस्टिमेट करते हैं, और उसके बेसिस पे फ्यूचर में हम बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हैं और हम गलत साबित होते हैं, ठीक है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बायस होती है जिसको हम कहते हैं एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस डिस्क्राइब्स पीपल्स टेंडेंसी टू रिलाई टू हैवीली ऑन द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रिसीव ऑन अ टॉपिक विच में हैव नो रिलेवेंस टू दी प्रॉब्लम एट हैंड। मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा आपको कुछ कहा जाता है कि इस पे आप अपना व्यू दीजिए, या कुछ एस्टिमेशन करने को कहा जाता है, और आपको उसके बारे में बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट दी जाती है, आप उसके बेसिस पे जजमेंट करते हैं। आपको ऐसा लगता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। देखिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में बताता हूं आपको। Now, this study was conducted by Dan Ariely and the colleague at MIT. इनकी एक बुक है थिंकिंग प्रिडिक्टिबली इरेशनल, बहुत अच्छी किताब है जो कि कॉग्निटिव बायसेस पे भी है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एमआईटी में किया, मतलब बहुत ब्रिलियंट बच्चों के बीच में, जो आप समझ सकते हैं कि इट इज नॉट डन बाय द ऑर्डिनरी पीपल बट द कोलीग्स ऑफ एमआईटी। उन्होंने एक स्टडी किया जिसमें उन्होंने क्या, बहुत सारे आइटम्स थे जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड, बॉटल ऑफ वाइन या टेक्स्ट बुक्स। और उनको उन्होंने ये कहा कि उनके जो लोगों ने एस्टिमेट किया उसकी प्राइस, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर से एक कनेक्शन था। ये देखिए आप समझ, जैसे आपका जो आधार कार्ड का नंबर होता है उसका लास्ट डिजिट चाहे 01 हो
चाहे 99 हो। ये तो आपको मालूम है कि रैंडम बेसिस पे रहता है। इसका कोई आपसे, आपकी पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। अब अगर मान लीजिए मैं एक प्राइस आइटम है एक्स, और आप कहूं कि आप एक्स के बारे में प्राइस को बताइए, तो क्या आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा आपके ये जो आधार कार्ड का नंबर है? आपको आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? डू यू थिंक? है? नहीं पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्चुअली फर्क पड़ता है। तो ये जो आइटम्स हैं, ये आइटम्स लोगों को दिए गए और कहा गया उनसे कि सबसे पहले आप अपना सिक्योरिटी नंबर क्या है वो बताइए। ठीक है? जो आपका एसएसएन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि आपके आधार की तरह ही है। तो उनसे कहा गया कि भाई आपका मान लीजिए सोशल सिक्योरिटी नंबर है 01 या 09, और किसी दूसरे का नंबर है 98 या मान लीजिए 90 है। ठीक है? तो आपसे कहा गया कि आप बताइए आप इससे ज्यादा पैसा देंगे कि नहीं देंगे, मतलब 98 से ज्यादा देंगे कि नहीं देंगे, या 01 से ज्यादा देंगे कि नहीं देंगे। उसके बाद में आपको कहा गया कि आप एक्सेप्ट करिए ना करिए, देंगे या नहीं देंगे, मतलब यस या नो आप बोलिए। मतलब ये इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में पहले डाली गई कि हाँ भाई आप सोशल सिक्योरिटी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स से ज्यादा देंगे कि नहीं ज्यादा देंगे। तो उन्होंने कहा भाई नहीं ज्यादा देंगे या ज्यादा देंगे। फिर उनसे कहा गया कि ठीक है, अब आप बताइए कि इस आइटम के लिए आप कितनी प्राइस पे कर सकते हैं मैक्सिमम। यू गॉट द पॉइंट? और ये पाया गया बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कि जिनका सोशल सिक्योरिटी नंबर हाईएस्ट था, मतलब 80 से 99 था, उन्होंने उसी आइटम के लिए ज्यादा बिड किया एज कंपेयर टू जिनका सोशल सिक्योरिटी नंबर कम था, 1 से 20 के बीच में था। जैसे जो लोगों का सोशल सिक्योरिटी नंबर 80 से 99 था, उन्होंने सेम आइटम के लिए $56 बिड किया कॉर्डलेस कीबोर्ड के लिए। जबकि बॉटम जो लोग थे जिनका सोशल सिक्योरिटी नंबर 1 to 20 था, उन्होंने उसको सिर्फ $16 पे बिड किया। आपने देखा, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स लोग पैसा देने को तैयार थे, जस्ट बिकॉज उनको सोशल सिक्योरिटी नंबर उनका हाई था। इज इट इंटरेस्टिंग? ये इसमें इस इशू पे कोई डाउट तो नहीं आपको? यू गॉट द पॉइंट? मतलब कि जो सोशल सिक्योरिटी नंबर का कोई मतलब नहीं था, जैसे आधार नंबर का किसी भी चीज परचेज करने से कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन ये देखा गया कि फर्स्ट जब उनको पहले लास्ट 2 डिजिट्स नंबर को रिमाइंड कराया गया, तो जिनका नंबर हाई था वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार थे, जिनका नंबर कम था वो कम प्राइस देने को तैयार थे। तो इसको हम कहते हैं एंकरिंग बायस। मतलब अगर आपको कोई चीज पता नहीं है, तो जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है, आप उसके बेसिस पे जजमेंट करते हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। आप अगर गूगल करेंगे तो और भी इसके बारे में जानेंगे, हम बहुत अफेक्ट होते हैं इससे। उसके बाद में एक्सपर्टाइज बायस होता है। एक्सपर्टाइज बायस का मतलब क्या होता है कि जो आदमी जिस फील्ड में एक्सपर्ट रहता है, वो हमेशा उसको लगता है कि दुनिया उसी तरीके से चलती है। एक फेमस कहावत है, इफ यू ऑल यू हैव ए हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। मतलब अगर आप पुलिस वाले हैं तो आपको लगता है कि भाई आप जितने क्रिमिनल्स उनको उठा के जेल के अंदर डाल दो, उनको मार डालो, प्रॉब्लम सॉल्व। टैक्स वाले हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई आप सारे के सारे जो लोग हैं वो अगर टैक्स पे करने लगे, इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व। जो आदमी रिलीजियस है, उसको लगता है अगर सारे लोग धर्म को फॉलो करने लगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। कहने का मतलब होता है जिस फील्ड में हम एक्सपर्ट होते हैं, वो हम सोचते हैं कि उसी एक्सपर्टाइज से सोल्यूशन निकल सकता है। तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कीपिंग देयर प्रॉब्लम्स अलाइव टू मिट रेगुलर मनी फ्रॉम देयर क्लाइंट। उनको ऐसा लगता है कि आप जो उनकी एक्सपर्ट फील्ड है उससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। जैसे जो डॉक्टर्स हैं आप देखेंगे, वो आपको रेगुलर चेकअप के लिए कहते हैं कि भाई आप रेगुलर चेकअप करिए, डॉक्टर को कंसल्ट करिए। टैक्स ऑफिसर कहेगा भाई आप रेगुलर टैक्स पे करिए तभी देश आगे बढ़ेगा। पुलिस वाला कहेगा कि भाई आप लॉ को फॉलो करिए तो देश आगे बढ़ेगा। इस तरीके से जिस फील्ड में हमारी एक्सपर्टाइज रहती है, हमें लगता है कि प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पे है। मतलब
जैसे कि जो हम लोग बहुत हजारों साल तक ये समझते थे कि अर्थ जो है सेंटर में है और चारों तरफ सन घूम रहा है, मून घूम रहा है, उसी तरीके से हमारा एक नेचर होता है कि हम ये समझते हैं कि दुनिया हमारे चारों तरफ घूम रही है। मतलब जो हम सोचते हैं, अगर वैसा ही सब लोग सोचने लगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हम एक्सपर्टाइज बायस कहते हैं, ठीक है। अभी हम आपके जवाब क्वेश्चन को लेते हैं मनोज, ये लास्ट हम लोग ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्यूनिंग क्रगर इफेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बायस होता है। इस बायस का मतलब होता है कि इफ यू दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द एक्सपर्टाइज बायस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, उससे कनेक्टेड भी है। When a person's lack of knowledge and skill in certain area causes them to overestimate their own competence। जिस फील्ड में हमको नॉलेज नहीं रहती है, हमें ऐसा लगता है कि उस फील्ड की प्रॉब्लम्स को हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट पीपल आर कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग्स विच दे डू नो द लीस्ट। जैसे अगर किसी आम आदमी से पूछिए कि इंडिया में करप्शन को कैसे दूर कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं, वो आपको 100 तरीके बता देगा। अगर आप उससे पूछे कि भाई इंडिया में जो हमारी कंट्रीज को हम कैसे डेवलप कंट्री कर सकते हैं, मतलब एज अ पॉलिटिशियन हम अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हम कैसे देश को सुधार सकते हैं, वो 100 आइडिया आपको दे देगा। एक जो रिक्शे तांगे वाला है वो भी आपको 100 आइडिया दे देगा। लेकिन जो आदमी उस फील्ड में है, वो आदमी आपको नहीं देगा आइडिया, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रॉब्लम्स क्या है। सो मोस्ट पीपल आर हु आर इग्नोरेंट, दे आर वेरी क्विक टू कम टू द सोल्यूशन। जिस फील्ड में हमको नॉलेज नहीं रहती है, हम उस फील्ड में प्रॉब्लम्स को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, और इस तरीके से वी ओवर एस्टिमेट अवर एबिलिटी टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन लाइफ। जैसे एक स्कूल टीचर है, वो आपको बता देगा बिजनेस कैसे किया जाता है, वो बता देगा कैसे कंपनी खोलो और कैसे हम करोड़पति बन जाएं। ऑटो ड्राइवर से पूछें, वो भी आपको बता देगा गवर्नमेंट कैसे चलानी चाहिए। अगर कोई सेलिब्रेट आपका स्पिरिचुअल गुरु है, जिसने कभी जिंदगी में शादी नहीं की, जिसका कोई बीवी बच्चा नहीं है, जिसकी कोई फैमिली नहीं है, वो आपको रोज टिप्स देता रहता है कि कैसे आप अच्छी फैमिली लाइफ को लीड कर सकते हैं। और ये बर्नार्ड रसल का बहुत फेमस कोट है, वो इस बात पे सही, द फंडामेंटल कॉज ऑफ ट्रबल इज दैट द मॉडर्न वर्ल्ड द स्टूपिड आर कॉकश्योर ऑफ अबाउट द इंटेलिजेंस एंड व्हाइल द इंटेलिजेंस आर फुल ऑफ डाउट। क्योंकि देखिए, जिस फील्ड में, जैसे मैं टैक्स डिपार्टमेंट में था, तो टैक्स डिपार्टमेंट में मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल होता है कलेक्शन करना टैक्स से इवेजन के इंफॉर्मेशन को। उसके बाद में आप रेड करते हैं, उसके लिए आपके पास में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए। फिर रेड के बाद में अगर कुछ मिल भी गया तो उसको कोर्ट में सक्सीड करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो आम आदमी है, उसको लगता है अरे क्या प्रॉब्लम है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं दिखता नहीं है आपको, आप जाइए रेड करिए, पैसा रिकवर करिए। तो जिस फील्ड में हमको नॉलेज नहीं रहती है, हम उसमें हमेशा अपने को ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने वी डिस्कस अबाउट दिस कॉग्निटिव बायस। आई आई होप दैट यू फाउंड इट यूजफुल। आप लोग ये icriticalthinking.org जो हमारी वेबसाइट है, प्लीज विजिट दिस वेबसाइट। इस पे हमारा बहुत सारा रीडिंग मटेरियल है, कॉग्निटिव बायसेस पे भी है। इसमें लाइब्रेरी सेक्शन जो है, उसमें आप जा सकते हैं और उसके अंदर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और एक सेकंड, तो सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे इज द कॉग्निटिव बायसेस। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज हम उसको टेकअप करेंगे। तो ये इमोशनल फैक्टर नहीं होते मनोज, ये जरूरी नहीं इमोशन से रिलेटेड हो, क्योंकि इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा इंट्यूशन, जैसे आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें इमोशंस नहीं आते हैं, उसमें इंट्यूशंस आते हैं। आप शुरू शुरू में जब कोई भी प्रॉब्लम पढ़ते हैं, मान लीजिए, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि आपको बहुत टाइम लगता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लेकिन जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली, तो फिर उस प्रॉब्लम को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज इंट्यूशन, दैट मीन्स ये जो कॉग्निटिव बायसेस, इट इज मोर कनेक्टेड विद योर इंट्यूशन, दैट इज इंटेलेक्ट, है ना, आपका जो माइंड होता है। और इसका सोल्यूशन ये होता है कि ठीक है, नॉर्मल कोर्सेज में ये हमें हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि हम अगर हमारे रोज हम 100 डिसीजंस लेने हैं, तो हर डिसीजंस पे हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, उसके अंदर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लॉजिकली सोचें। और हमें ये, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि ये बायसेस हमारे अंदर हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका एट्रीब्यूशन बायसेस था, हम सोचते नहीं है,
हम ये काम रोज करते हैं लेकिन हम सोचते नहीं है। उसी तरीके से अवेलेबिलिटी बायसेस है, हम जजमेंट करते हैं बहुत ही कम इंफॉर्मेशन पे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट दीज बायसेस एग्जिस्ट। और जब हमें इन बायसेस को समझ में आएगा तो फिर हम इन बायसेस को दूर करेंगे, तब हम बेटर डिसीजंस को ले पाएंगे। ठीक है। नहीं, डाटा कलेक्ट करने में एफर्ट करना पड़ता है। देखिए कोई भी चीज है, मान लीजिए किसी आदमी के बारे में आप देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी आदमी का नाम बताते हैं, अब ये मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, या मान लीजिए अमेरिकन है, या पाकिस्तानी है, हमने सिर्फ एक चीज हमें पता है कि आदमी अमेरिकन है, या आदमी पाकिस्तानी है, या हिंदू है, या मुस्लिम है, या मेल है, या फीमेल है। और हम देखेंगे कि ज्यादातर लोग क्या होता है, वो सिंगल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो सारी पर्सनालिटी को बना लेते हैं कि ये इंडियन है तो ऐसा होगा, पाकिस्तानी ऐसा होगा, बांग्लादेशी ऐसा होगा। जबकि बांग्लादेश के अंदर ही हजारों टाइप के लोग हैं, उसके अंदर बहुत ब्रिलियंट लोग भी हैं, बहुत फैनेटिक लोग भी हैं। इंडिया के अंदर ही बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, बहुत फैनेटिक लोग हैं। तो आइडिया ये है कि उसके बारे में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ा है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। जब हमारे पास में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो तब उसके बेसिस पे हम जजमेंट को करें, बजाय इसके कि आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप जजमेंट को करें। यू गॉट इट। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग वी आर आल्सो कंडक्टिंग अ लाइव सेशन। हम लोग अभी सैटरडे को अभी मैंने कल एक सेशन किया था, और वो हम गूगल मीट पे करते हैं। और गूगल मीट पे हमने एक सेशन कल ऑर्गेनाइज किया था जिसमें रवि सुब्रमण्यम थे, नंदिता दास थी, और एक शैलेश यादव थे, शैलेंद्र यादव, वो पार्टिसिपेट किए। तो उसमें जैसे अभी आप यहाँ पे हमें क्वेश्चंस केवल पूछ सकते हैं, फेस टू फेस हम एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है ये हम सैटरडे को कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट सेशन है हम प्लान कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पे करने का, एस्ट्रोलॉजी पे कि इधर इज ए साइंस और सूडो साइंस और लाइक दैट। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम इवेंट सेक्शन में जो हमारा है उसमें हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको ज्वाइन करें। आई फाउंड दैट दैट इज मोर पार्टिसिपेटिव, और वो ज़्यादा इंटरटेनिंग भी है, ज़्यादा नॉलेज भी उसमें हम एक्वायर करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। ओके, सो यू कैन ज्वाइन देयर। एंड एनी क्वेश्चंस यू हैव, आज के उसमें कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, वी हैव टाइम, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। एनीवन, कोई अगर क्वेश्चंस हो, डाउट हो आपके, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? यस। So I think there are no more questions. So thank you very much. Thank you all of you for joining the session. I hope कि आपको ये सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इवेंट सेक्शन में चले आइए, जो icriticalthinking.com है, उसमें भी मुझे इस सेशन को अपलोड करना है। ठीक है, और इसका हम इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, और यूट्यूब पे अपलोड करके द सेम जो आपका इवेंट सेक्शन में जो हमारा है उसमें हम अपडेट कर देंगे इसको। ठीक है, आई विल अपडेट दैट। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है, या जितने भी पुराने सेशंस हैं उसको हम यूट्यूब पे अपलोड करके और उसके बाद में उसकी लिंक अपडेट कर देते हैं जो हमारा इवेंट सेक्शन है। सो ऑलवेज गो टू द इवेंट सेक्शन एंड आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ मेल, हाँ मेल में आपको हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, आपको मेल करेंगे जैसे ही हमारा नया सेशन शेड्यूल होता है इवेंट सेक्शन का। और अभी उसको हम और ज्यादा लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद में नया सेशन में सैटरडे को याद रखिए 11 बजे का सेशन होगा, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।